بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلن کیلر جو امریکہ کی ایک بہت بڑی فیمیل رائٹر تھی، وہ ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے گھر کے جو دروازہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کا جو گیٹ ہوتا ہے، ہمیں اس کے کلر کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے باہر جو سیڑھیاں ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتہ۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لائف کو انجوائے نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں لائف کو فل فلیجڈ انجوائے کرنا چاہیے۔ آج میں نہر بلور باری دبا جو ہیڈ بلوکی کے مقام پر، جو لاہور سے پتوکی کے قریب جنوب مغرب کی طرف 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں سے یہ نہر نکلتی ہے اور 175 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ اگاڑا، ساہیوال، خانیوال اور ملتان کے اضلاع کو سراب کرتی ہے۔ اور ایک نہر بلور باری دواب جو ہے وہ 1906 سے لے کر 1913 تک اس کی کنسٹرکشن شروع کی گئی اور 1922 عیسوی میں اس کا باقاعدہ اس کی منظوری دی گئی کہ 7,40,358 ہیکٹر یعنی 18,30,245 ایکڑز کو یہ سرو کرتی ہے اور 16,69,600 ایکڑ کو یہ سراب کرتی ہے۔ یہ جو نہری نظام ہے، یہ پاکستان کا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظام میں سے ایک نظام ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں ہیڈ بلوکی کے یعنی اپنے گاؤں کے بالکل پاس ایک بہت ہی ایک زبردست قسم کا ایک برج ہے، میں وہاں پر کھڑا ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے وہاں پر بنا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کو کتنی روانی سے، پانی کو کتنی تیزی سے آگے کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی جو فلو ہے، اس کا جو فلکس ہے وہ برقرار رہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پر جو سچویشن ہے وہ کتنی زیادہ ڈینجرس اور کتنی زیادہ فارمیڈیبل لگ رہی ہے۔ آپ خود آبزرو کریں کہ خدا نخواستہ اگر یہاں بندہ گر جائے تو اس کے بچنے کے چانس جو ہیں وہ بالکل ہی زیرو ہے۔ اس کا مطلب جو پانی ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک مرلی سروسز بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ جس طرح کہ اس وقت میں نہر بلور باری دبا جو اپنے گاؤں کے بالکل قریب، جہاں قریب ہی ہمارا ایک بنگلہ ہے جسے داد فتیانہ بنگلہ کہتے ہیں، اب میں آپ کو اس کے متعلق تھوڑی دیر بعد تفصیل بتاؤں گا۔ فی الحال یہ جو نہر ہے نہر بلور باری دبا، یہ پاکستان کی ون آف دا بگیسٹ کینالز آف پاکستان، یہ پاکستان کی بڑی ترین نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ یہاں بھی پانی کی آواز بہت زیادہ برسک اور بہت ہی زیادہ تیز ہے۔ اس کا مطلب جو شام کے وقت ایسے خوبصورت مناظر جو ہوتے ہیں ان کو ہمیں ضرور انجوائے کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر بہت بڑی انعامات اور بڑے احسانات اور ہم پر بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اس وقت میں اپنے گاؤں کے پاس، ایک گاؤں ہے 105 سیونار، اس کے بالکل جنوب کی طرف یہ بنگلہ جسے داد فتیانہ بنگلہ کہتے ہیں، وہاں پر یہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ملکہ علاقہ ہے، وہاں پر یہ واقع ہے۔ اس وقت یقین کریں یہاں بہت ہی سپیل باؤنڈ اور یعنی میجک جیسی یہاں پر ماحول ہے اور بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے، خاص کر شام کے وقت۔ یہ بہت ہی یہاں پر ڈینجرس قسم کی سچویشن ہے اور یہ بنگلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انگریزوں نے کیوں بنائے تھے۔ یہاں دیکھیں برگد کے درخت، کتنے بڑے درخت، شاید یہ 100 سال پہلے کے، کیونکہ جو نہر جو تھی وہ 1906 سے لے کر 1913 تک یہ کنسٹرکشن کی گئی، تو ساتھ ہی ساتھ انگریزوں نے یہ جو بنگلے تھے یہ تعمیر کیے، کیونکہ اس وقت ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم جو تھا، اس وقت جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم جو تھا وہ اتنا زیادہ جدید نہیں تھا کہ بات کو بڑی ایزلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ تو انگریزوں نے کیا کیا، انہوں نے نہروں کے کنارے پر بالکل گاؤں کے پاس ہی
ये एक खूबसूरत से उन्होंने बंगले बनाए ताकि यहाँ पर आकर अंग्रेज़ ऑफिसर या बाद वाले जो ऑफिसर थे वो यहाँ पर मुकीम हों और यहाँ पर अपना कुछ वक्त गुजारें। मैंने सुना है, किसी बुज़ुर्ग ने मुझे बताया है कि यहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्म का ओल्ड सिस्टम था जो टिक टिक, यानी अगर खुदा न खास्ता नहर को खतरा पैदा होता तो ख़ास किस्म के मैसेजेस जो थे उस टिक टिक सिस्टम के ज़रिए वो साहिबाद, खानेबाद, मुल्तान या नेक्स्ट इलाकों के अंदर जहाँ पर यानी महकमा नहर के ट्रांसलेटर्स होते थे वो उस चीज़ को यानी ट्रांसलेशन करके वो आगे कन्वर्ट कर देते। तो इस तरह मैसेज जो था वो पहुँच जाया करता था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये अंग्रेज़ों की जो बिल्डिंग्स हैं ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की हैं कि 100 साल होने के बावजूद ये आज भी बहुत साउंड हालत में मौजूद हैं। लेकिन हमें अफसोस होता है कि हमारे जो आगे अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा उन्होंने इस इलाके की, इन बंगलों की केयर नहीं की और इनकी यानी तबाही और बर्बादी जो इनकी डिज़ास्टर हो रही है उस पर उन्होंने ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। ख़ासकर हालांकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने ये कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सिस्टम जो था उन्होंने ये यानी यहाँ पर उन्होंने तामीर किया था ताकि अंग्रेज़ और उनके ऑफिसर जहाँ पर आकर रेस्ट करें और यहाँ पर आकर वो वक्त गुजारें। सेकेंडली इनका एक और भी मकसद था, जो घोड़ी पाल मरबे थे, पैडेक्स, खासकर जो करीबी देहातों के इलाकों के यानी घोड़ी पाल मरबे होते थे, जो अंग्रेज़ कर्नल या मेजर ऑफिसर यहाँ आया करते थे तो फिर यहीं पर घोड़ियों के सालाना एनुअल्स जो उनके मलाजे होते थे, इंस्पेक्शन यानी एनुअल इंस्पेक्शन यहीं किए जाते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बिल्डिंग्स थीं ये कितनी ज़्यादा आज भी साउंड हैं और आज भी इनका बहुत ज़्यादा आप देख लें वो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स जो अलग थलग, वहाँ पर एक छोटी सी एक मस्जिद भी नज़र आ रही है और यहाँ पर आम के ट्रीज़ भी हैं और बरगद बैनियन ट्रीज़ भी हैं और बहुत सायादार दरख्त हैं, क्योंकि लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एरी, ख़ासकर ये दरख्त, आप इस दरख्त का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके तने की मोटाई से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कम से कम एटलीस्ट 100 साल से ज़्यादा पुराना है। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो यहाँ से गए 1947 में, लेकिन ये जो नहर थी, नहर लोर बारी दबाब, जिसके किनारे पर ये एक बरगद का ये एक दरख्त है, आप इसकी मोटाई और इसकी ऊंचाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा एक रेगुलर तरीके से इन दरख्तों को उगाया गया था ताकि यहाँ ऑक्सीजन की फरावानी हो, जहाँ छाँव जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा अंग्रेज़ों के नहरी निज़ाम और रेलवे निज़ाम कितने ज़्यादा परफेक्ट थे। आप इस बिल्डिंग की यानी आप मेंटेनेबिलिटी और इसकी जो अभी सस्टेनेबिलिटी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स आज भी टूट फूट का शिकार होने के बावजूद आज अपनी असली हालत में मौजूद हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारी अथॉरिटीज़ और हमारी हुकूमत पंजाब ने इनकी तरफ ज़रा भी कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि अंग्रेज़ों ने हमें नहरी निज़ाम और हमें रेलवे का निज़ाम अता करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, जिसका हम एहसान उतार ही नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें यहाँ पर अंग्रेज़ किस तरह अपनी गिग्स पर और अपने टोंगास पर या पुरानी गाड़ियों पर यहाँ आया करते थे। अब मैं एक कह लें कि अपस्टेयर्स हैं, वहाँ पर आपको चढ़ के ये जो बंगला है इसके मतलब, इसके मुख्तलिफ हिस्सों के मतलब आपको बताऊंगा। आप देखें, ये देखें, अब इसकी सिचुएशन इस तरह हो चुकी है क्योंकि 100 साल बीत जाने के हुए हैं। ये वो टैंकी थी जहां पर वो पानी इकट्ठा किया करते थे। अब मैं सील यानी रूफ़ की तरफ आपको चढ़ के दिखाता हूं कि ये देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का उनका ये सिस्टम था कि आज भी इतने ज़्यादा, ये देखें यहाँ पर उनकी चिमनियाँ थीं और ये उनके दरख्त कितने ज़्यादा उन्होंने यानी बड़े रेगुलर तरीके से इनको मेंटेन किया हुआ था। और ख़ासकर और यहाँ पर जो उन्होंने शुरू में जो ओल्ड और ट्रेडिशनल किस्म का उन्होंने सिस्टम लगाया था ताकि
साहिवाल जो उनका हेड क्वार्टर्स होता था, ताकि मुल्तान खानेवाल तक की खबरें, खुदा न खास्ता अगर नहर को कोई ख़तरा है, कोई लाश बह के आ रही है या कोई और किस्म का यानी जेपरडाइजिंग सिचुएशन है, तो वो टिक टिक किस्म का सिस्टम के ज़रिए ख़बरें आगे पहुंचा दिया करते थे। तो आगे जो ट्रांसलेटर्स होते थे वो उनको फ़ौरन ही उनको ट्रांसलेट करके उनको रजिस्टर कर देते थे। अब आप ये देखें कितने खूबसूरत और तनावर दरख्त हैं कि बंदा देख के अकल दंग रह जाती है। वो यानी इस तरह ऐसा ज़बरदस्त किस्म का रेगुलर और बिल्कुल एक ही कतार के अंदर उन्होंने यानी इस बंगला को उन्होंने तामीर किया था। अब इसके बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि अब वो बिल्कुल ही डिज़ास्टर का शिकार हो चुके हैं और टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। यानी कितने अफसोस का मकाम है कि अंग्रेज़ों ने इस बंगले को बनाने में कितनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और कितना ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया और कितना ज़्यादा हमारा एसेट्स उन्होंने खर्च किया, लेकिन हमारी आने वाली हुकूमतों ने इस पर ज़रा बराबर भी तवज्जो न दी, क्योंकि अब सिस्टम बहुत जदीद हो चुके हैं, क्योंकि अब टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत ही जदीद है। अब मोबाइल आ चुके हैं, अब फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है और इस तरह ख़बरें जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से पहुंचाई जा सकती हैं। अब आप देखें ये इसके वो डैमेज्ड और बिल्कुल ही शैटर्ड पार्ट्स हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी ईंटें अब भी ब्रिक्स अपनी जगह मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ये बैनियन का ट्री, ये बरगद का दरख्त शायद 100 साल से भी ज़्यादा हो। तो अंदाज़ा करें जब उन्होंने यहाँ पर इन पौधों को लगाया होगा तो कितनी ज़्यादा उन्होंने प्लानिंग की होगी, कितनी ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रामिंग की होगी, कितनी ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया होगा। ये देखें इस बरगद का दरख्त कितना ज़्यादा ऊंचा, बहुत ही ऊंचा, इतना ऊंचा इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब ये देखें ये जो पार्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। अब पत्तों की सरसराहट, जो सूखे हुए पत्ते हैं, अब मैं उनके ऊपर चल रहा हूँ और आप यानी इसका थर्ड पार्ट देखें और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बिल्डिंग है अब ये कितनी ज़्यादा क्रिटिकल और कितनी ज़्यादा डेंजरस और फॉर्मिडेबल इसकी सिचुएशन है कि ये किसी टाइम भी गिर सकती है और बहुत ज़्यादा यानी ड्रॉनी भी लग रही है। और आप एक छोटी सी एक मस्जिद है वो आप अंदाज़ा लगाएं और ये जो बिल्डिंग है ये इसका जो फोर्थ पार्ट है आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह वो सारी की सारी आज शिकस्त खुर्दा है और आज उसको कलर लगा हुआ है और आज ईंटें जो हैं वो किस तरह बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही हैं। लुक एट वो इसका एक पार्ट है और अब वो बरगद के दरख्त, ये तो व्हाट अ ब्यूटीफुल, और वो दरख्त देखें किस तरह उन्होंने रेगुलर तरीके से बनाए। तो मैं आखिर से आपको यही कहूँगा कि शाम होने वाली है, सूरज जो है वो बिल्कुल अब सनसेट यानी अपने गुरूबे आफ्ताब की तरफ जा रहा है। तो इट इज़ टाइम टू गो टू माई होम। तो आखिर में यही कहूँगा सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, और इस किस्म की बिल्डिंग्स जो होती हैं उनकी हिफाजत कीजिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इन बिल्डिंग्स से अंदाज़ा लगाएं कि शुरू में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें और कितने ज़्यादा उनको चैलेंजेस होते होंगे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ आते होंगे, बाद वाले भी ऑफिसर्स आते होंगे। तो विश यू गुड लक, खुदा हाफिज़।